Bismillahirrahmanirrahim. Today we discuss the application of the Schrodinger wave equation. We have discussed earlier the Schrodinger wave equation. So today we discuss its applications. So the simplest application of the Schrodinger wave equation is to apply it to the translation motion of a particle in one-dimensional box. So this is these Schrodinger wave equations can be applied to a particle in one-dimensional box, to a particles in 1D box, one-dimensional box. And this is the simplest application of Schrodinger wave equations. This is the simplest applications of Schrodinger wave equations to the translational motion of a particle, to translational motion of a particles. These particles can be atoms, electrons, or molecule in space. The obtained results can explain why the energies are quantized, So consider a particle in a one-dimensional box. Considered a particle of mass m, in one-dimensional box of length L, of 1D box of length L. For simplicity, it is assumed that potential, ये हमारे पास है one dimensional box किस तरह है. Consider a particle इस तरह along x axis है ना. तो यहाँ पर ये है x is equal to 0 और यहाँ पर ये x is equal to L. So this total distance, length of the box, this is L. इसमें एक particle है. So this is moving along x-axis. So consider a particle of mass m in 1D box having length L. Length is when x is equal to 0. This particles move when x is equal to 0 to x is equal to L. And for simplicity, it is assumed that potential energy inside the box is 0. Potential energy inside box is 0. So it means there is only kinetic energy, translational energy. So particles can have only kinetic energy. At the ends of the box, एक ये end है और दूसरा ये end है. At the ends, both ends of the box, at both end of the box, there is an infinite potential wall. There is an infinite potential wall. So there is no probability of finding the particle outside the box. Hence, there is no probability of finding the particles outside the box.
सो इट इज़ कन्फाइंड, यहाँ पर ये पोटेंशियल एनर्जी वॉल्स पर ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिट पोटेंशियल वॉल्स है. सो दिस पार्टिकल्स, the probability of finding these particles outside these walls when x is less than 0 or when x is greater than 0, there the probability of finding the particle is 0. So the particles there, this particle exists inside the box. The Schrodinger wave equation for one dimensional, as we have discussed, Schrodinger wave equations for x-axis is d2 psi divided by dx2 plus 8 pi square m divided by h square and e minus v and psi is equal to 0. As potential energy is 0, तो ये v हम इग्नोर कर लेते हैं. सो d2 psi डिवाइड बाई dx2 प्लस 8 पाई m डिवाइड बाई h स्क्वायर और e एंड psi इज इक्वल टू 0. ये इक्वेशन हो गया. लेट अब काइनेटिक इन द टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट. सो 8 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, m कांस्टेंट, h कांस्टेंट. सो ये सारा टर्म कांस्टेंट हो जाएगा. सो लेट 8 pi m divided by h square and e, this is a constant. Let this is k square, where k square is a constant. So this equation becomes as, we can write as d2 psi divided by dx2 plus, इसके बजाय हम ले लेते हैं यहाँ पर ये सारा k स्क्वायर है. तो दिस इज k स्क्वायर एंड psi इज इक्वल टू 0. सो दिस इज अ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस. द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, सॉल्यूशन की डिटेल में हम नहीं जाते. So the general solutions for these equations for equation, let's suppose this is equation 1. For equation 1 is given by psi is equal to a sine kx plus b cos kx, where a and b, these are two arbitrary constant. A and b, these are constant, arbitrary constants, and the values of these constant can be determined by applying the boundary conditions. Values of a and b can be determined by applying boundary conditions. Boundary condition हमारे पास दो है. When x is 0 and less than 0, or when x is equal to L or greater than L. So boundary condition क्या है? When x is equal to 0 or less than 0, then psi is equal to 0. यानी इससे बाहर, ये इससे बाहर है ना, x is equal to less than 0. x is less than or equal to 0, then probability of finding the particle is 0. यानी outside the box there is no probability. तो जब x 0 से कम हो जाए, यानी इस एरिया में ये है, there is no probability of finding the particle. So psi is equal to 0. Wave function is equal to 0. Similarly, when x is greater than or equal to L, in walls पर b probability 0 है, then
psi is equal to 0. और तीसरी कंडीशंस when x is less than greater than 0 or equal to 0 and it is less than L or equal to L, then psi is equal to a sin kx plus b sin kx. ये हो जाए cos ax cos kx. तो अभी इस इक्वेशन पर हम अगर इस पर बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं, पहला कंडीशंस व्हेन ये तो बाउंड्री कंडीशन है ना, नंबर 1 और 2 दीज आर बाउंड्री कंडीशंस. तो इस इक्वेशन को अगर हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं, पहला बाउंड्री कंडीशन क्या है, व्हेन x इज इक्वल टू 0 और लेस देन 0, व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो फिर क्या हो जाएगा, व्हेन x इज इक्वल टू 0 दी psi इज इक्वल टू 0. तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू a sin k 0 प्लस b cos k and 0. ये हो गया. sin 0 is equal to 0 and cos 0 is equal to 1 as sin 0 is equal to 0 and cos 0 is equal to 1. तो इसका मतलब ये टर्म ये सारा 0 हो जाएगा. so 0 is equal to 0 plus b into 1. so b is equal to 0. तो जब ये टर्म b 0 के बराबर है तो इट मीन्स दी psi विल बी इक्वल टू a sin kx. इसी तरह व्हेन हमारे पास इक्वेशन है psi इज इक्वल टू a sin kx प्लस b cos kx. व्हेन x इज इक्वल टू l, तो फिर क्या होगा, x इज इक्वल टू l, अगेन psi विल बी इक्वल टू 0. so 0 इज इक्वल टू a sin k l प्लस ठीक, यानी इस वैल्यू में यहाँ पर a को फाइंड आउट करने के लिए x को पुट करते हैं. हमारे पास इस इक्वेशन में psi इज इक्वल टू a sin kx. इसमें l के वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू l, देन वी हैव 0 इज इक्वल टू a sin एंड k और l. ये हो जाएगा. अब ये 0 टू टर्म्स हैं हमारे पास, ये एक हैं और एक sin k l हैं. अब इसमें से या तो आइदर a इज इक्वल टू 0 और sin k l इज इक्वल टू 0, इन दोनों में से एक होगा. इफ़ a इज इक्वल टू 0, अगर हम a को 0 लेते हैं, सो इट वुड मीन्स दैट psi will be equal to 0 for any value of x. If a is equal to 0, then psi will be 0 for any value of x. This is not acceptable. psi तो तब ही 0 होगा when x is equal to 0 और when x is equal to l. अब अगर a को हम 0 ले लेते हैं तो फिर ये psi दिस विल बी 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ x. ये पॉसिबल नहीं है, यानी इसका ये मतलब है कि a 0 नहीं हो सकता. अगर a 0 है तो फिर क्या होगा, psi विल बी 0.
यहाँ पर हो, इधर हो, कहीं पर भी साई 0 हो जाएगा, लेकिन ये ऐसा नहीं है, तो लिहाजा ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो दूसरा टर्म्स क्या है, तो इसका ये मतलब है कि फिर हम ये कह सकते हैं कि साइन के एल दिस इज इक्वल टू 0, और एज वी नो दैट साइन पाई दिस इज आल्सो 0, इसी तरह साइन 2 पाई ये भी 0 के बराबर है, साइन 3 पाई ये भी 0 के बराबर है। जनरलाइज करते हैं, साइन n पाई ये भी 0 के बराबर है। अब ये साइन के एल 0 के बराबर है और साइन n पाई भी 0 के बराबर है, तो इसका मतलब दिस के एल इज इक्वल टू n पाई। इस कंडीशन से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इस डिस्कशन से, कि के एल इज इक्वल टू n पाई और k इज इक्वल टू n पाई डिवाइडेड बाई l, और k स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई l स्क्वायर। ये हो गया। अब ये k किसके बराबर था, हमने पहले ये श्रोडिंगर इक्वेशन में किया था, वो d2 साई डिवाइडेड बाई dx2 प्लस 8 पाई m 8 पाई स्क्वायर m डिवाइड बाई h स्क्वायर और e और साई इज इक्वल टू 0। इसको हमने k के बराबर लिया था ना, k स्क्वायर के बराबर लिया था, 8 पाई m डिवाइड बाई h स्क्वायर e इज इक्वल टू k स्क्वायर, और k स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई है। सो वी कैन राइट दैट 8 पाई m डिवाइड बाई h स्क्वायर e इज इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर और l स्क्वायर। इससे एनर्जी फाइंड आउट करते हैं, सो E विल बी इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर, और ये h स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये 8, ये पाई स्क्वायर है, पाई स्क्वायर m और l स्क्वायर, तो ये पाई स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा एंड वी गेट E is equal to n square h square और 8 m l square। तो दिस इज़ दी एनर्जी। अब ये सारे कांस्टेंट हैं, अब इन इसमें क्या है 1 2 3 एंड सो ऑन। सो h 8 m और l ये सारे कांस्टेंट हैं। सो फॉर द लोवेस्ट एनर्जी लेवल व्हेन n इज इक्वल टू 1, n is equal to 1, E that would be called at 0 point energy, that is the lowest energy level। E क्या हो जाएगा, h square divided by 8 m l square। For n is equal to 2, n is equal to 2, E will be equal to, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 h square divided by 8 m l square। सिमिलरली फॉर n इज इक्वल टू 3, तो ये 9 हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू 9 h स्क्वायर 8 m और l स्क्वायर। सो इट मीन्स द एनर्जी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, यहाँ पर देख लें, इट शोज दैट एनर्जी इज मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h square divided by 8 m l square, hence it is quantized, the energy levels are quantized। अब यहाँ पर देख लें, ये अगर ये 0 पॉइंट हम लेते हैं when n is equal to 1, n is equal to 1, तो एनर्जी क्या है, h स्क्वायर, यहाँ पर ये है h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 m l स्क्वायर। यानी अगर हम दूसरे डायग्राम में ले लेते हैं, ज़ीरो पॉइंट एनर्जी यहाँ पर व्हेन n इज इक्वल टू 1, एनर्जी क्या हो जाती है, एनर्जी इज E 0 पॉइंट एनर्जी, इट वुड बी इक्वल टू h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 m l स्क्वायर। व्हेन n इज इक्वल टू 2, तो फिर 4 है,
ये यहाँ पर when n इज इक्वल टू 2, तो एनर्जी इज E2 इज इक्वल टू किसके बराबर है 4h² डिवाइडेड बाई 8ml²। when n इज इक्वल टू 3 तो वो और भी ऊपर हो जाए 9 है ना, यानी इस 2 को अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं, ये यहाँ पर हो जाएगा, ये 2 है, n इज इक्वल टू 2, तो 3 ऊपर यहाँ पर कहीं आएगा, n इज इक्वल टू 3, और ये हो जाएगा E3 9h² 8ml², और फिर 4 और भी ऊपर हो जाएगा। So this shows that energy levels are quantized. Energy is quantized. तो इस फिगर से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? This shows that this figure shows number 1, energy levels are quantized, or energy is quantized. Number 1, and second, the energy levels are not equally spaced. पहले में क्या स्पेस है, दूसरे में, और तीसरा फिर 14 हो जाएगा। So energy levels are not equally spaced. The energy gap between adjacent level goes on increasing. जितना हम ऊपर जाते हैं, the energy gaps increases. Energy gap between adjacent level goes on increasing. अच्छा, अब इसकी ए की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं? ये हमारे पास इक्वेशन हमने वी हैव गॉट द इक्वेशन इज, ये तो एनर्जी क्वांटाइज हो गई, प्रूफ कर दिया है ना, साई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स, यहाँ तक हम आ गए हैं ना, या साई इज इक्वल टू ए साइन n पाई डिवाइडेड बाई l एंड x, ये इक्वेशन हमने हासिल कर दिया है। तो हाउ टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ a, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a, दैट इज एम्पलीट्यूड। ये इस तरह हमने वेव डिस्कस किया था, तो ये a है ना, एम्पलीट्यूड। तो इसके लिए क्या करते हैं, सिंस द पार्टिकल्स रिमेन इनसाइड द बॉक्स एज द पार्टिकल्स रिमेन इनसाइड द बॉक्स, सो द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल बिटवीन, सो total probability of finding the particles between x is equal to 0 and x is equal to L is unity। यानी पार्टिकल्स, ये x is equal to 0 है और यहाँ पर x is equal to L है, तो पार्टिकल इधर कहीं है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल्स यहाँ पर भी हो सकते हैं, इधर भी है, कहीं पर भी है, लेकिन इनके दरमियान है। और टोटल प्रोबेबिलिटी वो क्या है, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1, टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। सो वी कैन से दैट a probability of finding the particle, it is represented by psi square dx, where x is extend from 0 to L, this is equal to 1। ये psi square dx ये क्या है, this represent the probability of finding the particles, this
represent the probability of finding the particles between x is equal to 0 and x is equal to L. Solution of this equation, अब यहाँ पर साई स्क्वायर इसकी अगर ये वैल्यू हम लगा लेते हैं 0 से L तक, और साई स्क्वायर है a साइन n पाई डिवाइडेड बाई L और x एंड स्क्वायर एंड dx, ये हो जाएगा ना, इज इक्वल टू 1. अब अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन गिव्स इससे हमारे पास सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशंस gives a is equal to 2 by L under root. So ओवरऑल इक्वेशन फिर क्या हो जाएगा साई के लिए, साई इज इक्वल टू a साइन के एक्स है, तो साई विल बी इक्वल टू 2 by L अंडर रूट साइन n पाई डिवाइडेड बाई L एंड x, और प्रोबेबिलिटी of finding the electron will be equal to finding of the particle will be equal to square हम लेते हैं तो 2 by L and sin 2 n by L और x. So this is the application of the Schrödinger wave equation to the particle in one dimensional box. इसी तरह इस इक्वेशन को हम 3 dimensional box में भी अप्लाई कर सकते हैं, उससे भी हम एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं कि एनर्जी क्वांटाइज्ड रहेंगे, एनर्जी विल बी क्वांटाइज्ड, वो फिर हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं.